Hello everyone, I am Shanky Kothari. I'll be your in charge and coordinator for this UPSC batch. In this lecture, I just want to communicate to you an introduction regarding all the topics and subjects which would be going through in our prelim section. So I hope you are able to see on your screens. I have taken a snapshot from UPSC notification itself which lists the prelim syllabus. एक एक करके हम बात करेंगे कि syllabus में क्या topics हैं, उनके बारे में आप क्या पढ़ेंगे. As a subject, I will be taking up your Indian economy part. For different subjects, there are different teachers who will start communicating with you in a gradual manner. So first you can see current events of national and international importance. In a way, it covers whole current affairs. So in this part, what you have to do, सबसे best तरीका to understand, learn and remember current affairs is to daily read newspapers. Like we would recommend 2 newspapers. Out of this 2 कोई एक पढ़ सकते हैं. You can either read the Hindu or the Indian Express. अब न्यूज़पेपर पढ़ने में जो समस्या आती है वो ये है कि कौन सी खबर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और कौन सी खबर को ओवरलुक करना है, नेगलेक्ट करना है. फिर जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. दिस होल थिंग रिगार्डिंग न्यूज़पेपर डिस्कशन we would start in a few days, not now, क्योंकि अभी predominantly newspaper is burdened with corona. So we will wait some bit of time and we will start with your newspaper classes. In that we would be dealing with all the nitty gritties, एकदम बारीकियाँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, कैसे नोट्स बनाना, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. So this would be started in a few days of time, your newspaper classes. So this first topic deals with current affairs, current events of national and international importance. Second topic is history of India and national movement. History of India is generally divided into 3 parts which we study. One is ancient India, like the Harappa age, like the rule of Mauryans, like Gupta, and you might have heard like Chola. And then we have medieval India, जहाँ पर we will read about Delhi Sultanate and the Mughal rule. And then we have third part of history as modern India, जहाँ पर you will study about the India's freedom struggle, जो generally start होता है somewhere around 1857 से 1947 तक. तो ये 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इन 3 पार्ट्स को यूपीएससी पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो इक्वल वेटेज बिल्कुल नहीं देता है. जो प्रीडोमिनेंटली क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टू 70 to 80% क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट, दैट इज़ 1857 की हिस्ट्री से लेकर 1947 जो आज़ादी की लड़ाई हुई है, 1857 की क्रांति हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है, गांधी जी का अराइवल हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब पे मैक्सिमम सवाल बनते हैं. एंशियंट का ही एक हिस्सा है आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल इंडिया. मेडिवल पे ऑलमोस्ट नील सवाल, बेयरली 1 से 2 सवाल यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग. इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूस ट्रेंड. Some bit of about 10% of the weightage in history goes to ancient India and art and culture, but the majority is covered in your modern India. So this would be our pattern also. The maximum time we would be devoting to modern India, a lesser time to ancient and art and culture, and least time to medieval India. Third part of syllabus is India and world geography. In India and world geography again इसे डिविजन्स में बांटा गया है. एक है फिज़िकल ज्योग्राफी, जहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ये नदी, झरने, आकाश, हवा, व्हाट इज़ द साइंटिफिक फिनोमिना बिहाइंड इट. इन द ह्यूमन पार्ट यू विल स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, कि व्हाट डू यू मीन बाय से डेमोग्राफी, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या थ्योरीज़ हैं जैसे मैल्थस की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. And when you will study about social geography, which is
to a great extent overlapping with human geography, where you will study जैसे cropping patterns, urbanization, etc. तो और ये you will study in two different parts, India's geography and world's geography. Then fourth we have Indian polity, governance, constitution, political system, panchayati raj, public policies, rights, etc. This we will know as polity कुल मिलाकर. So polity consists of basically the working and the details of Indian constitution. जो डिटेल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, क्या बैकग्राउंड रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ से हमने सोर्सेज लिए हैं, हर आर्टिकल पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं किस मुद्दे पर. ऑल दिस यू विल बी स्टडी इन दिस पॉलिटी सेक्शन. नाउ अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन यू ऑल्सो हैव अ गवर्नेंस सेक्शन. गवर्नेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी, कि जो लिखित तौर पर डॉक्यूमेंट है कि जैसे आर्टिकल 14 संविधान और कानून की नज़र में सब समान होंगे. इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है कि क्या वाकई में सब समान है, क्या एक गरीब के लिए भी न्याय पाना उतना ही आसान है, सुचारू है जितना कि अमीर के लिए. अगर नहीं है तो इसमें समस्याएं क्या हैं, अगर है तो किस मॉडल के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करा गया, कौन सी स्कीम लाई गई, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए. ये जो एप्लीकेशन पार्ट है लिखित पॉलिटी या लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी को हम कहते हैं गवर्नेंस. गवर्नेंस बेसिकली इज स्पेसिफिकली मेंशन इन योर मेंस पार्ट, लेकिन गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट है अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट की, विच विल बी कवर्ड इन योर प्रीलिम्स पार्ट. So one is polity to a great extent, which will deal with Constitution of India, and you have governance, which is the application of this Constitution of India in our day-to-day life. कि किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं नज़र आती हैं, क्या हल हैं, क्या स्कीम्स हैं to implement this rule of law. Then we have economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives. Here basically you will be studying about Indian economy, उसके अलग अलग pillars like fiscal policy, monetary policy, agriculture, infrastructure, etc. और इकोनॉमी का ही एक एस्पेक्ट होता है सोशल एस्पेक्ट, जहाँ पर यू विल स्टडी अबाउट कि इकोनॉमी के संदर्भ में कौन सी स्कीम्स जनता के वेलफेयर के लिए सरकार इम्प्लीमेंट करती है, या फिर क्या कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमी के जिसके थ्रू जनता की भलाई या जनता के वेलफेयर के लिए कदम लिए जाते हैं. Poverty, inclusion, social sector initiatives, all this will be covered in your economy section. I will be taking up your economy section. Next is environmental issues. It is specifically added. So here you will study about some scientific terminologies, scientific understanding of environment, how it functions, what are the challenges, कौन सी स्पीशीज़ विलुप्त हुई हैं, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, देश में एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज़ हैं, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट इज़ टेकिंग टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, एट इंटरनेशनल लेवल व्हाट ट्रीटीज़ हैव बीन साइंड, कौन सी संधियाँ हुई हैं एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में. लास्ट टॉपिक दे हैव मेंशन्ड इज जनरल साइंस. You will study about the application part of physics, chemistry, biology. Means जो UPSC prelims में पूछता है, that is not the static part. They will generally are not asking about the class 6th, 7th, 8th static science. They generally ask the application part. जैसे they will not ask कि what is the structure of say atom. दे विल आस्क इट्स एप्लीकेशन, कि CERN में जो एटम पर रिसर्च हुई है उसमें कौन से कंक्लूजन निकल कर आए हैं, A, B, C या D. तो दे जनरली आस्क द एप्लीकेशन पार्ट, एंड मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द क्वेश्चन इन जनरल साइंस आर फ्रॉम करंट इवेंट्स, कि लेटेस्ट इसरो ने कौन सा GSLV के थ्रू लॉन्च
सक्सीड करा है, GSLV का फ़ीचर क्या है, PSLV का फ़ीचर क्या है, एक्सेट्रा। तो जनरल साइंस का पैटर्न इज़ हेविली लेडन विथ करंट अफेयर्स, कि जो करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं 90% of the question are related to that thing. So this is about paper 1. It is of 200 marks and it carries negative marking, and the more marks you score in this paper, more are your chances of qualifying prelims and to appear in mains. अब यहाँ पर यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, ये जो भी टॉपिक्स प्रीलिम्स के यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स हो गई बात ख़त्म अब मेंस में नए टॉपिक। ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीलिम्स are part of mains also. Just go through your main syllabus once. In this video I'm not discussing about main syllabus. If you go through your main syllabus, each and every topic mentioned here is part of mains, and each and every topic which is mentioned here has a question in mains also. मतलब एक तरीके से फ़ायदा ये हो रहा है कि इस prelims की पढ़ाई के साथ we would also be dwelling into अ पार्ट ऑफ मेंस, बट नॉट द कंप्लीट पार्ट ऑफ मेंस, क्योंकि इन पॉइंट्स के अलावा भी मेंस में कई सारे पॉइंट्स हैं विच विल बी सेपरेटली डेल्ट इन योर मेंस क्लासेस, विच इज़ ऑफलाइन क्लासेस, जब आप उसे ऑफलाइन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पेपर 4 एथिक्स इज़ एक्सक्लूसिवली मेंस, पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर एक्सक्लूसिवली ऑफ मेंस। ऐसे ही पेपर 1 का टॉपिक से इंडियन सोसाइटी इज़ एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन मेंस। ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली पार्ट ऑफ मेंस, तो वो मेंस में कवर होंगे। यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होंगे। यू विल बी एबल टू कवर दीज प्रीलिम्स टॉपिक्स as good as for your prelims and as will be good for your mains also. So this is about paper 1. पेपर 2 इज़ जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, कि आपको इस बस क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स लेकर आने हैं इसमें। उससे ज़्यादा लाएंगे तो कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे कम लाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स से, चाहे पेपर 1 में आप 200 में से 200 लाए हों। तो पेपर 2 इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, आपको 33 कम से कम 33% मार्क्स लेकर आने हैं। नाउ व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश के अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप सेंटेंस को पढ़ के उससे क्या समझ पाते हैं, इस बात पर जांच होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ गुड आर यू एट कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे पजल्स, कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें आपका डिसीजन आपको मार्क करना होगा, 4 ऑप्शन में से एक सबसे सही डिसीजन, दे विल जज यू बेस्ड ऑन इट। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्लास 10th तक का मैथ्स से बेसिक एल्जेब्रा, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन क्लास 10th लेवल दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन। बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ ग्राफ के क्वेश्चन हो सकते हैं, XYZ। दिस पेपर 2 इज़ नोन एज CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की 200 नंबर का पेपर होता है। आपको 33% मतलब 66.66 मार्क्स कम से कम लाने हैं। ज़्यादा लाएं तो बहुत अच्छा, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पेपर मेरिट कैलकुलेशन में ऐड नहीं होता है। आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पर निर्भर करता है। पेपर 2 इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, उसे क्वालिफाई कर लीजिए और फिर पेपर 1 में जितने मार्क्स लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ती है। So this is it about a basic lecture plan. What we have planned for now is we would be beginning with at least 3 lectures. One will be economy, Indian economy, I will be taking it. Second would be Indian polity, that is about our constitution. Our HOD for English medium, Mr. Rishi Bhosle, would be taking it. And third lecture would be history. Mr. Sameer Gandhe would be taking it. Then newspapers in a few days time, as newspaper has more content worth discussing, we would be starting with your newspaper classes also. So this is the plan for the time being. From now onwards you will be able to starting with 3 lectures: economy, polity and history.
over a few days we would be beginning with a current affairs and newspaper also. So if you have any academic query, you can directly call me. I'll be flashing my number on the slides aside me. If you have anything, you can contact me. Thank you.